So the color of the LED light depends upon the material used in the semiconducting element. तो जो different colors की आप LED lights देखते हैं वो depend करता है कि कौन सा material आपने use किया उस LED को बनाने में, और जो material है वो decide करेगा कि कौन से color की light उस LED में से emit होगी. So when LED is forward biased, the current will flow from anode to cathode, and if the LED is reverse biased, no light output can be achieved in that case. तो होता क्या है कि जब आप LED को forward biased करते हैं तो electron holes का recombination हो जाता है in the junction region, and the energy that is released that is in the form of light. तो अगर इन सिंपल लैंग्वेज हम बात करें तो in order to get a photon, what you need to do is you have to elevate an electron to a higher valence shell. If you somehow get an electron over there, the electron doesn't like it over there, so it will fall back to its rest shell. And in doing such a transition, the energy released will be in the form of a photon. तो मतलब LEDs are current dependent devices with forward current and forward voltage dependent upon the semiconductor material used. And since this semiconductor material will vary for LEDs of different colors, the voltage drop across different color LEDs will also be different. So typically the forward voltage values for a particular current, say 20 milliamperes, is shown for LEDs of different colors. 10 to 30 milliamperes is the range of the current that the LEDs of different colors can tolerate. Now next question should be that why do we have different LED voltage for LEDs of different colors? Now I told you this depends upon the material that is used, but for this explanation the material science can be overlooked. Now energy is hc by lambda. H is the Planck's constant, c is the velocity of light and lambda is the wavelength. तो मतलब अगर lambda ज़्यादा है energy कम है, तो red color is characterized by longest wavelength and lowest energy, और जो वॉयलेट या इंडिगो और जो वॉयलेट इंडिगो ब्लू जैसे कलर्स हैं इनकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट होती है और एनर्जी ज़्यादा होती है। अब टू मेक अ फोटोन आपको इलेक्ट्रॉन को किसी हायर वैलेंस शेल तक पहुंचाना है, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ स्टेबिलिटी महसूस नहीं करेगा, तो वो नीचे अपने रेस्ट शेल में जब जाएगा तो आपको जो एमिशन मिलेगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, और उसी की वजह से जो उसकी फोटोन की जो वेवलेंथ होगी वो डिसाइड करेगा कि कौन से कलर की आपको LED लाइट का आउटपुट मिल रहा है। तो मैंने कहा डिफरेंट मटेरियल्स की वजह से जो कलर होगा LED का वो डिफरेंट होगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए अगर हम मान लें कि सारे सिलिकॉन LEDs हैं, सिलिकॉन की हैं, और जो मटेरियल मिक्स होगा, जो सिलिकॉन में हम मिक्स करेंगे वो अगर डिफरेंट होता जाएगा, उससे क्या होगा कि जो LED के कलर्स हैं वो डिफरेंट होंगे। अगर हम ये एक्सप्लेनेशन में मांगे तो इलेक्ट्रॉन अपने जो बैलेंस शेल से रेस्ट शेल की तरफ जब आएगा वो तभी पॉसिबल होगा कि जो मटेरियल मिक्स है वो प्रॉपर हुआ हो, ठीक है, जो सिलिकॉन में जो चीज़ ऐड करनी है वो प्रॉपर हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को ऊपर पहले पहुंचाना है फिर वो नीचे आएगा। अब इलेक्ट्रॉन को ऊपर पहुंचाने के लिए हायर वैलेंस शेल की तरफ अगर पहुंचाना है तो आपको बाहर से एक एक्सटर्नल पावर देनी पड़ेगी, ठीक है, और जितनी आप ज़्यादा वोल्टेज दोगे उतना ही वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, उतनी ही उसमें एनर्जी होगी। हायर दी वोल्टेज मोर दी एनर्जी। अब रेड की आपको पता है वेवलेंथ ज़्यादा है, एनर्जी कम है, तो आपको एनर्जी को अगर आप वोल्ट से रिलेट कर रहे हो तो अगर आपको रेड कलर चाहिए तो वोल्टेज कम लगेगी, और अगर आपको दूसरे कलर्स चाहिए टुवर्ड्स दी अदर एक्सट्रीम जैसे इंडिगो वॉयलेट ब्लू, उसके लिए आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होगी उन कलर्स को ऑब्टेन करने के लिए। जो LEDs हैं वो ओम्स लॉ ओबे नहीं करती, तो until the voltage applied across the LED reaches its forward voltage, तो जो करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी होगा वो बहुत कम होगा। तो when the applied voltage exceeds this forward voltage value for a particular color, for an LED of a particular color, the current will increase exponentially with increase in the voltage. So this excessive current that flows through the LED can destroy it, and you should limit it. और लिमिट कैसे कर सकते हो आप? थ्रू द हेल्प ऑफ रेजिस्टर्स। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस LED भी डिफरेंट है कि मतलब डिफरेंट कलर LEDs को डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वोल्टेज चाहिए अपना काम करने के लिए। अपना काम मतलब वो स्पेशल कलर एमिट करने के लिए जिनके लिए वो बनी है, ठीक है। तो वो अगर डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप सेम अमाउंट ऑफ करंट
बाहर से दे रहे हैं, कि मतलब आपने जो एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई है वो कांस्टेंट रखी है, सेम अमाउंट ऑफ करंट अगर आप फ्लो करवाना चाह रहे हैं तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो भी वेरी करेगी। कैसे? सपोज आपने 20 मिली एम्पियर्स करंट फ्लो करवाना है हर एक कलर की एलईडी में से, तो जो रेड कलर की एलईडी है उसके आगे आपको जो रेजिस्टर लगाना है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी बाकी कलर्स से। तो जो कलर्स होंगे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू वाले, उसके आगे जो आप रेजिस्टर्स लगाएंगे उसकी रेजिस्टेंस कम चलेगी, उनको रेजिस्टेंस कम लगेगी क्योंकि उनका VLED जो फॉरवर्ड LED वोल्टेज है उसका वो उनका ज़्यादा है। चूजिंग अ ग्रेटर रेजिस्टर वैल्यू, तो उससे क्या होगा कि आपका जो करंट थ्रू दी LED है वो थोड़ा कम जाएगा, लेकिन वो फिर क्या इफेक्ट करेगा कि जो LED किस इंटेंसिटी से ग्लो कर रही है वो इफेक्ट करेगा, वो थोड़ी सी डिम होगी। लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस को उसकी रेंज में रखेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर कलर्ड LED, तो आपको जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट आउटपुट चाहिए उस LED का वो मिल जाएगा। तो ये डायरेक्टली लगाने का तरीका इसलिए गलत है क्योंकि आप एकदम से ज़्यादा वोल्ट बैटरी लगा रहे हैं इसको ग्लो करवाने के लिए और बीच में कोई रेजिस्टर नहीं है, ठीक है। तो अगर आपकी बाहर से जो बैटरी है, जो अगर आपकी बाहर से एक्सटर्नल पावर सप्लाई सेम है और आप सेम अमाउंट ऑफ करंट जो कि रेंज में होना चाहिए LED को ग्लो करवाने के लिए वो रख रहे हैं, तो जो डिफरेंट कलर LEDs के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ रेजिस्टेंस जो आपको चाहिए होगी वो आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो I think that was enough for today. I'll see you in my next video. Till that time, do not forget to take really good care of yourselves. Bye bye.